السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب آپ اکیلے بیٹھ کر روتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھو، جب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، جب حوصلہ ٹوٹنے لگے، جب خاموشیاں بیان سے باہر ہونے لگیں، جب دل ٹوٹنے لگے، تب ذرا رکیے اور رک کر سوچئے، ہاں کوئی نہیں اپنا مگر رب تو ہے نا۔ بس جب رب ساتھ ہے تو کیسا غم۔ کچھ مانگ رہے ہو تو شک میں مت پڑو، یقین کامل رکھو، وہ دے گا کیونکہ وہ دیتا ہے۔ مایوس مت ہونا، جس کو غم زیادہ ملتے ہیں ان کے لیے اللہ پاک کی محبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جسے تم ناممکن سمجھ کر رو دیتے ہو، اللہ پاک وہی تمہیں عطا کر کے خوش کر دے گا۔ اللہ پاک دینا چاہتا ہے تبھی تو خواب دکھا رہا ہے، ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی توفیق دے رہا ہے۔ جب خوشیاں تمہارے مقدر میں ہوں گی انشاءاللہ، اور کیا آپ کو پتا ہے جب آپ تنہا بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں تب آپ کو اللہ پاک کے فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہی فرشتے اللہ پاک کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کا فلاں بندہ فلاں جگہ پر بیٹھ کر رو رہا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کے پاس جاؤ اور انہیں چپ کراؤ، اور فرشتے تھک ہار کر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ یا اللہ، آپ کا بندہ ابھی بھی رو رہا ہے۔ اور پھر فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا بندہ کس چیز کے لیے اتنا رو رہا ہے، جبکہ آپ کے پاس اپنے بندے کے لیے سمندر ہے، آپ انہیں کس چیز سے محروم کیے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ اس لیے رو رہا ہے کیونکہ میں نے اس سے اس کی کوئی چیز چھین لی جو اس کو بہت زیادہ عزیز ہے، اور وہ اس چیز کو واپس حاصل کرنے کے لیے اتنا رو رہا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میری ذات کی قسم، اگر میرا بندہ اس پر میری رضا کی خاطر صبر کر لیا تو میں اسے ایسی چیز سے نواز دوں گا جس پر پوری کائنات رس کرے گی، اور پھر جو چیز اس سے چھین لی گئی ہے وہ اس چیز کو بھول جائے گا۔ بے شک اللہ پاک ہی ہمارے دلوں کو جانتا ہے۔ ایک بچہ اگر آگ میں چھلانگ لگانا چاہے تو کیا اس کی ماں اسے آگ میں چھلانگ لگانے دے گی؟ بالکل نہیں دے گی، کیونکہ اس سے بچے کو خطرہ ہے جو کہ وہ نہیں جانتا، مگر اس کی ماں بخوبی جانتی ہے۔ پر سوچو، وہ رب جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، بھلا وہ تمہیں ایسی چیز میں کیوں مبتلا کرے گا جو تمہارے لیے بہتر نہیں؟ بے شک اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ جب تمہاری زندگی میں کوئی ایسی تکلیف یا پریشانی آ جائے جو تمہیں کنٹرول سے باہر ہو تو ہمیشہ یاد رکھنا اس بات کو کہ آندھی کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ آپ کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ یاد رکھو اپنے اللہ پاک پر، اگر آپ اس کی رضا کی خاطر صبر کر لیں گے تو پھر وہ آپ کی چاہت سے راضی ہو کر انہیں آپ کی رضا کا حصہ بنا دے گا۔ وہ تمہاری کہانی کو جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، جو کنویں سے نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ تمہارے غموں کو خوشیوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ دعائیں پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہیں، دعا نصیب بدل سکتی ہے، جو چھین لیا ہو وہ واپس لوٹا سکتی ہے، جن کے ہونے کا گمان بھی نہ ہو وہ دعا کر سکتی ہے، دعا ہر گمان کو حقیقت میں تبدیل کر سکتی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہوتی ہے۔ قرآن پاک ہمیں جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے، نہ امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہی ہے، تو بس بہت جلد ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دن قریب ہے جب ہم اپنی ہر دعا حقیقت میں بدلتے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لوگ تمہیں توڑیں گے، بس تم ہمت نہ ہارنا، مایوس نہ ہونا، بس تم رب کو رب سے جوڑ لینا، خود کو رب سے جوڑ لینا، باقی لوگوں کو وہ دیکھ لے گا۔ رب اس انسان کو کبھی گرنے نہیں دیتا جسے ہر حال میں الحمدللہ کہنے کی عادت ہو۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور تمہارا مانگنا اللہ پاک کی توفیق کے بنا ممکن ہی نہیں ہے، تو جس نے مانگنے کی توفیق دی ہے وہ قبول بھی ضرور کرے گا۔
بس آپ صبر اور شکر کے ساتھ ہمت نہ ہارنا۔ اس لیے آپ ہمیشہ دعا کرتے رہو۔ جانتے ہو ہم کبھی کبھی اتنا ٹوٹ جاتے ہیں اور اتنا مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر ہماری آنکھوں میں آنسو کے سوا کچھ نہیں ہوتا اور ہم بس اللہ پاک سے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ اللہ پاک نے میری دعا قبول ہی نہیں کی۔ کہ اللہ پاک سب کو تو سب کچھ دے رہا ہے لیکن مجھے کیوں نہیں دے رہا، اللہ پاک میری ہی دعا کیوں نہیں سن رہا، کیا میں اتنی گنہگار ہوں۔ روتے ہوئے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کب تک صبر کرنا پڑے گا تو قرآن پاک میں جواب ملتا ہے، تم کیا جانو شاید وعدے کا وقت قریب ہو۔ پھر جب ہم کہتے ہیں کہ لیکن لگتا ہے تم مجھے بھول گیا ہے یا اللہ، تو پھر قرآن پاک میں جواب ملتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے نبی میرے بندے اگر میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں ان کی پکار سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ تو ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اللہ پاک تو میری پکار ہی نہیں سن رہا۔ جب اللہ پاک پر توکل کیا ہے تو یہ مت سوچو جو مانگا ہے وہ کب اور کیسے ملے گا، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا، کب اور کیسے اب اس کا فیصلہ تو وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔ جب تم ناممکن حالات کے باوجود دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ پاک تمہیں معجزوں کا راستہ دکھاتا ہے، چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف ڈھکیل دے، لیکن اگر تمہارا اللہ پاک پر کامل یقین ہے تو اللہ پاک تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ اور جانتے ہو جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دیا تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے، وہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا اور کبھی رائگاں نہیں جاتی، اور جب معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو ظالم کبھی بھی بچ نہیں پاتا۔ وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، اور کیا تم نے کبھی یہ نہیں سنا وہ بڑا ذوالجلال ہے۔ اور پتہ ہے اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی۔ قبولیت کا ایک اصول ہے کہ صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ بے شک اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ جب اللہ پاک کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ پاک کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ اگر آج زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ پاک نے کیا ہے۔ اللہ پاک سے مانگو، خوب مانگو، اللہ پاک تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے جس کو اللہ پاک نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے سجدے میں بے چین دلوں کی صفا رکھی ہے۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ دنیا میں سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ زندگی تھکا دینے والی چیز ہے اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ پاک کے ذکر میں ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب رب پر چھوڑ دو۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ ٹھوکریں بھی انہی کو لگتی ہیں جنہیں اللہ پاک تھامنا چاہتا ہے۔ تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ اور مضبوط ہو جاؤ۔ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ صبر کی 2 صورتیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔
जो लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें तो जान लो कि अल्लाह पाक तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वो अल्लाह पाक के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल से निकली आह सीधा अर्श तक जाती है। लोग जितना भी दिल दुखाएं, यह याद रखा करें कि जब अल्लाह पाक के बंदे हमें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह पाक से जोड़ता है। लोग कहते हैं होता तो वही है जो नसीब में लिखा हो। अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह पाक कुरान में कहता है, तुम मुझे पुकारो, पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादिर हूँ। जब तुम किसी शख्स को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगो तो समझ लेना तुमने अपने ईमान को खो दिया। हालात अगर बुरे हों तो यकीन रखना चाहिए, क्योंकि रब जब कुछ लेता है तो उससे बढ़कर नवाजता है। 5 जगहों पर 5 चीजों की हिफाजत करो, महफिल में जुबान की, बाजार में आंख की, नमाज में दिल की, दस्तरखान पर पेट की और निगाह में हया की। 3 चीजें इंसान को अल्लाह पाक से दूर करती हैं। अपने अमल को ज्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना और अपने आप को सबसे बेहतर समझना। जिस ख्वाहिश को तुम अल्लाह पाक की रजा के लिए रद्द कर देते हो, वो उसी ख्वाहिश पर राजी होकर उसे तुम्हारा मुकद्दर बना देता है। जब अल्लाह पाक किसी से नाराज होता है तो उसे ऐसी चीज की तलब में लगा देता है जो उसकी किस्मत में नहीं होती। जो अपने नसीब पर अक्सर रोते रहते हैं, उसे एक खबर ही नहीं होती कि उस रब ने उसके हक में और भी बेहतर लिखा होता है। इंसान की तमाम परेशानियां 2 बातों की वजह से तकदीर से ज्यादा चाहता है, वक्त से पहले जाता है। बेहतरीन हमसफर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो आपसे इख्तिलाफात और नाराजगी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। इंसान रह सकता है मोहब्बत के बगैर, रिश्तों के बगैर, लोगों के बगैर, मगर इंसान अल्लाह पाक के बगैर नहीं रह सकता। यह दुनिया भी कितनी अजीब है। ईमानदार को बेवकूफ, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा न कर सके, उसके सामने जुबान से इजहार करना सिर्फ लफ्जों को जाया करना है। कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है। जिस तरह दीवार में से कील निकालने पर सुराख बाकी रहता है, तुम्हारा रब जिस चीज को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र करो। तुम किसी के साथ भलाई करो, तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हुई। ऐसे शख्स को कभी मत गवाना जिसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत, फिक्र, इज्जत और चाहत है। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तो 3 चीजों को कभी ना भूलना, अल्लाह पाक को, उसकी मखलूक को और अपनी औकात को। जो तुम्हें खुशी में याद आए समझो तुम उससे मोहब्बत कर रहे हो, और जो तुम्हें गम में याद आए तो समझो वो तुमसे मोहब्बत करता है। दुनिया को सच्चा होने की दलील मत दो, बस यही सोच रखो कि अल्लाह पाक सब जानता है। सब्र की 2 सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना, जो पसंद हो उसका इंतजार करना। किसी के बुरे कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं ना अच्छे। अपनी जुबान से हर शख्स अपना जर्फ दिखाता है, दूसरों का अक्स नहीं। हर इबादत का पता नहीं होता कि वो कबूल है कि नहीं, मगर दरूद शरीफ ऐसी इबादत है जो अदा होते ही कबूल हो जाती है। नमाज पढ़ा करो, कोई मिले या ना मिले अल्लाह पाक मिल जाता है, और जब अल्लाह पाक मिल जाता है तो फिर सब मिल जाता है। इंसान जिंदगी से मायूस हो तो कामयाबी भी नाकामी नजर आती है। नमाज उतनी ही जरूरी है जितना कि जीने के लिए सांस लेना जरूरी होता है। अल्लाह पाक हमें सजदों की लज्जत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जो बहुत अच्छा लगे उसे बहुत कम मिला करो, जो इंतहा से ज्यादा अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो, और जो दिल में समा जाए उसे सिर्फ याद किया करो, क्योंकि जो जितना करीब होता है दुनिया उसे उतना ही दूर कर देती है। हजरत अली ने फरमाया, जिंदगी के 3 उसूल बना लो, उससे जरूर माफी मांगो जिससे तुम चाहते हो, उससे कभी कुछ ना छुपाओ जो तुम पर एतबार करता हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है। बेहतरीन हमसफर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो आपसे इख्तिलाफात और नाराजगी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। मुश्किल चाहे छोटी हो या बड़ी, अपनों को पहचानने में आसानी पैदा कर देती है। अल्लाह पाक जब राजी होता है तो हर चीज को वसीला बना देता है। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। अल्लाह पाक की मदद आती रहेगी और कामयाबी मिलती रहेगी। इंशाअल्लाह अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, लेकिन वक्त के साथ अपनों का पता जरूर चल जाता है। जब तक हम दूसरों की खुशियां और अपने गम गिनते रहेंगे, हम यूं ही बेसुकूनी और मूरत की आग में जलते रहेंगे।
तबक करना मोमिनों का फर्ज है और अल्लाह पाक उन लोगों की मदद को यकीन पहुंचाता है। रिश्ते कमजोर होने की एक बड़ी वजह यह है कि हम रिश्ते निभाते कम हैं और आजमाते ज्यादा हैं। हंसी मजाक दुश्मनी की इब्तिदा है। रिश्तों को ऐसी खूबी से निभाओ, शहद की मक्खी फूलों से रस चूस भी लेती है और उनका नुकसान भी नहीं होने देती। वक्त को पैदा करने वाले रब को वक्त देकर देखें, वो हमारा वक्त बदल देगा। जिंदगी में एक बात याद रखना, तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, किसी को इतनी आसानी से ना मिलना। लोग सस्ता समझ लेते हैं। मुनाफिक और बदतमीज का फर्क किया जाए तो बदतमीज इतना खतरनाक नहीं जितना मुनाफिक। उम्मीदों और हकीकतों के दरमियान तवाज़ु कायम रखने वाला शख्स कभी गमगीन नहीं होता। दुआ कबूल होने से पहले आजमाइश जरूरी है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है। अगर यही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। किसी इंसान को दुख देना उतना आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, मगर कोई यह नहीं जानता कि वो पत्थर कितनी गहराई में गया है। ताकत होते हुए भी किसी को माफ कर देना अजाब खुदा से बचने का तरीका है। खूबसूरती एक नेमत है, लेकिन सबसे खूबसूरत आँख की जुबान है। चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो दिल तोड़ दे। अगर तुम्हारी आंखें खूबसूरत है तो तुम दुनिया से मोहब्बत करोगे। अगर जुबान खूबसूरत है तो तुम दुनिया से मोहब्बत करोगे। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाह नीचे रखो ताकि पता चले तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हो। जिस इंसान की जान निकल जाए तो वो जिंदा नहीं रहता, और जिस इंसान से एहसास निकल जाए तो फिर वो इंसान ही नहीं रहता। अल्लाह पाक से मांगो तो बेहिसाब मांगो, क्योंकि एक अल्लाह पाक ही है जो वापसी का तकाजा नहीं करता। तुम किसी के साथ भलाई करो, तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। जिसने तुझे तेरे ऐब बताए, अगर तुझे अकल हो तो बेशक उसने तुझ पर एहसान की इंतहा कर दी। दुख में कभी पछतावे के आंसू ना बहाओ, क्योंकि तुम वो खुशनसीब हो जिसे अल्लाह पाक ने आजमाइश के काबिल समझा। इस फानी दुनिया में किसी पर भी बेइंतहा भरोसा मत कीजिए, क्योंकि तारीख में तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। मौत ही जब जिंदगी का अंजाम है तो यह सारी कोशिश क्या है, जिंदा रहने के लिए या मरने के लिए। सबसे अच्छी हिजरत गुनाहों से नेकियों की तरफ आना है। किसी को अपना राज जाहिर करने पर जोर देने के बजाय ऐसा बनना चाहिए कि वो आप पर एतमाद करके खुद आप को अपने बारे में बता दे, मगर फिर वो राज एक अमानत होता है जिसकी हिफाजत आप पर फर्ज होती है। बेटी से नहीं, लोग बेटियों के नसीब से डरती हैं। अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। जिंदगी में हम यह अहम नहीं कि आप कितने अमीर, कितने मशहूर, कितने खूबसूरत हैं, बल्कि अहम यह है कि आप कितने असल, कितने सच्चे, आजीज और मेहरबान हैं। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा भी होता है जिसको देखने के लिए आंखों की नहीं, एहसास की जरूरत होती है। बेवकूफ से बहस करना दरअसल यह जाहिर करता है कि बेवकूफ एक नहीं बल्कि दो हैं। लिहाज और अजनबी औरत की इज्जत ऐसी चीजें हैं जो दुनिया की कोई डिग्री हमें नहीं सिखा सकती, सिवाय हमारे घर की तरबियत के। माँ वो हस्ती है जिसकी दुआओं से रब की रहमत बरसती है। बेहतरीन है वो रास्ता जिसकी मंजिल अल्लाह पाक की तरफ ले जाए। बिगाड़ पैदा होना एक फितनी अमल है और इस्लाह कर लेना एक दीनी अमल है, जबकि बिगाड़ पर कायम रहना सर्कस का अमल है। इस अनमोल जिंदगी को खूबसूरती से गुजारने के लिए दो बात का खास ख्याल रखिएगा। तन्हाई में अपने ख्यालात का, लोगों के दरमियान अपने अल्फाज का, रवैया और लहजे की पहचान रखने वाले दोहरा अजाब सहते हैं। सब कुछ जानकर अनजान जो बनना पड़ता है। खूबसूरती तो खत्म और तब्दील हो जाती है, लेकिन सीरत ना तो खत्म होती है न तब्दील। अगर आप वही कर रहे हैं जो हमेशा से करते आ रहे हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आ रहा है। जिंदगी में कभी किसी की जरूरत ना बनो, क्योंकि जरूरत तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। बनना है तो कमी बनो, क्योंकि कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। दुनिया के सभी लोग खूबसूरत है, बदसूरती हमारे रवैया और सोच में। कुछ लोगों से अल्लाह पाक बहुत प्यार करता है, इतना कि उन्हें गुनाह करने से बाज रखता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम जहन्नुम की आग छुए। शायद वो चुने हुए लोगों में से होती हैं। किसी के चेहरे पर मत जाओ, क्योंकि इंसान एक बंद किताब के मानिंद, जिसके सर पर कुछ और जबकि अंदरूनी सिफात पर कुछ और तहरीर होता है। रब की राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि रब ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा इंसान
मकान बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वो अपना रवैया नहीं बदलता। रिश्तों को मजबूत रखने के दो रास्ते हैं। जब आप गलत हो तो अपनी गलती तस्लीम करें, जब आप सही हो तो सिर्फ खामोशी इख्तियार करें। वजू जवानों की तरह करो, नमाज बूढ़ों की तरह पढ़ो और दुआ बच्चों की तरह मांगो। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हश्र तक और हश्र से जन्नत तक। इतर से कपड़ों को महकाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, वजह तो जब है कि किरदार से खुशबू आए। अल्लाह पाक तुम्हारी हैसियत देखकर नहीं, नियत देखकर नवाजता है। जब दिल किसी शख्स पर ठहर जाए तो जहन किसी और को कबूल करने के काबिल नहीं रहता। नमाज के लिए सुस्ती ईमान की कमजोरी की अलामत है। सच में खुशी, झूठ में परेशानी है, सब्र में बरकत, गुस्से में नुकसान है। अच्छा इंसान बनने के लिए आपको खुद कोशिश करनी पड़ती है, जबकि बुरा इंसान बनने के लिए मुआशरे की तमाम कुव्वत आपका साथ देती है। ताल्लुक भी रिज्क की तरह होता है, बदनीति जाए तो बरकत खत्म। रब तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन मैंने रब का पसंदीदा तरीन रास्ता मखलूक से मोहब्बत को चुना। बेशक मेरा रब वो है जो मेरी उम्मीद को टूटने नहीं देगा। जिस्म को मौत आती है, किरदार को नहीं। अपने किरदार को बेहतर बनाओ, मौत के बाद भी तुम्हें याद किया जाएगा। बेकरारी तकदीर इलाही को नहीं मिटाती। एक अच्छा इंसान होने के लिए यह जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज्यादा इल्म हो। अच्छा इंसान वो होता है जिसके पास एक मोहब्बत भरा दिल, दूसरों के दुख दर्द सहने के लिए खुले हुए कान और हर किसी की मदद करने के लिए बड़े हुए हाथ। जिंदगी के मुनाफिक सदा ठोकर में सबसे कीमती धोखा वो होता है जिससे आप गिरते हैं और उठना सीखते हैं। सफर जिंदगी का हो या बंदगी का, इरादे की मजबूती शर्त है, समझ जाओगे। उदासी का मतलब जाकर किसी कब्र की व्यवस्थी तुम देखना। अल्लाह पाक फरमाता है, मत हो परेशान मेरे बंद किए हुए दरवाजों पर, मैं खैर लाने से पहले मुसीबतों से गुजारता हूँ। तकरीबन 1000 मखलूक में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है। कोई मखलूक कभी भूखी नहीं रहती और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। अच्छी किताबें और अच्छे दिल हर किसी को समझ में नहीं आते। सबसे खूबसूरत रिश्ता और ताल्लुक रब्बुल आलमीन के साथ होता है, जिस पर भरोसा कभी हारने नहीं देता, जिस पर तवक्कुल कभी गम में मुब्तला नहीं होने देता, जिससे उम्मीद कभी मायूस नहीं होने देती, जिस पर यकीन कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, जिस पर ईमान कभी बहकने नहीं देता, जिसकी तरफ तवज्जो ना करें। अच्छे दिन खुशियां देते हैं, बुरे दिन तजुर्बा देते हैं, बद दिन सबक देते हैं और बेहतरीन दिन यादें देते हैं। जिंदगी की उलझनें सुलझ जाती हैं, अल्लाह पाक रास्ते निकाल देता है। उसकी हिकमत हमारी सोच से परे है। जरूरत सिर्फ यकीन की है, ईमान की पख्तगी की है। बरसती ही बारिश और रोती ही आंखों का एहसास सिर्फ उन्हीं को होता है जिनके घर कच्चे और दिल नाजुक होते हैं। बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। बेशक मेरा रब वो है जो इंसान की रूह के अंदर की अस्तों से वाकिफ है। इबादत से जन्नत और खिदमत से रब मिलता है। कुछ तो बेहतर लिखा है मेरे अल्लाह पाक ने, जो हर दफा दिल सब्र करने पर मजबूर हो जाता है। मामलात अल्लाह पाक के सुपुर्द करना ही बेहतर होता है, क्योंकि हम खुद भी अपने साथ इतने मखनी नहीं होते जितना अल्लाह पाक हमारे साथ होता है। जब आप कोई फैसला न कर पाए तो इंतजार करें। अल्लाह पाक के फैसले का वो आपके सामने सब वाज़े करता जाएगा, गिरह खोलता जाएगा, मगर इस सारे अरसे में आपको खामोश रहना है। आप अपनी जिंदगी से भले खुश ना हो, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप जैसी जिंदगी के लिए तरसते हैं। उलझना छोड़ दें ऐसी चीजों से, हालात से और लोगों से जिनको आप बदल नहीं सकते। अपनी तवज्जो बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाते हैं, कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं, और जिंदगी का सबसे तारीख पहलू ही यही है। खामोश हो जाया करें, सह जाया करें, झुक जाया करें, मान लिया करें। यह आजीज है जो अल्लाह पाक को बहुत महबूब है। बंदा जब बाख्तियार होते हुए खामोश हो जाता है तो अल्लाह पाक की नजर में मौत हो जाता है। बंदगी में इस्तिकामत हो तो इबादत कैसी। किसी भी रिश्ते में खूबसूरत होना मायना नहीं रखता, वफादार होना अहमियत रखता है। यकीन माने सब्र की जुबान इतनी ताकतवर होती है कि सताने वालों की बुनियाद हिला देती है।
सब्र कर लो, यह सोच करके जो कुछ भी हो रहा है उसमें अल्लाह पाक की मसलियत और तुम्हारी बेहतरी है। आजमाइश तो उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह पाक चाहता है, और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह पाक को चाहते हैं। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ है। अल्लाह पाक तेरा ही दर है जहाँ कभी ताना नहीं मिलता। खामोशी एक ऐसी इबादत है, फरिश्ता इसे लिख नहीं सकता, शैतान उसे बिगाड़ नहीं सकता, और उस रब के सिवा कोई उसे जान नहीं सकता। आजमाइश तो उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह पाक चाहता है, और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह पाक को चाहते हैं। अगर तुम्हें जरा सा भी अंदाजा हो जाए कि अल्लाह पाक तुम्हारे मामलात कैसे सीधे करता है, तो यकीन मानो तुम्हारा दिल अल्लाह पाक की मोहब्बत से भर जाएगा। मसला यह भी है हमारे साथ कि हमें दूसरों का मसला नहीं लगता। हर कामयाब शख्स के पीछे नफरत करने वालों की एक लंबी तार होती है। खुशियों का ताल्लुक आपके हालात से नहीं, आपके फैसलों से है। जब नीयत कुछ और हो और अमल कुछ और हो तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती। हम लोग अपनी नीयत लोगों से छुपा सकते हैं, उससे नहीं जिसने हमको बनाया है। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार जरूर है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत। बुराई का रास्ता बहुत आसान सही, लेकिन मंजिल तबाही है। हार और जीत तो अपने अंदर होती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है, जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। अंधेरा कितना ही गहरा और मजबूत क्यों ना हो, रोशनी की एक छोटी सी किरण से हार जाता है। अपनी उम्मीद के जुगनू को जिंदा रखें। दुनिया में अगर अपनी कोई जगह बनानी है तो सबसे खूबसूरत जगह किसी की सोच में रहना है, किसी की दुआ में रहना है, और किसी के दिल में रहना है। तुम्हारी हर वो जीत हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना हो। अगर हमारा अखलाक सिर्फ मनचाहे चंद लोगों के लिए अच्छा है तो हम सिर्फ मौका परस्त हैं। खुद अखलाक इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप नाक दरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार हैं। जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं तो एक छोटा सा उसूल अपना लीजिए, जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, जो मिला है वो लाजवाब है। गम और परेशानियां हर एक की जिंदगी का हिस्सा है। वह जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया, और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। वो जो पत्थर से पानी निकाल सकता है वो अपने बंदे के लिए वसीला बना ही देता है। जब अर्श वाले की तरफ से हाँ हो तो फर्श वालों की तमाम साजिशें बेकार हो जाती हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत हकीकत आंखों से नहीं दिल से महसूस की जाती है। बस फिर जब मैंने दिल से खूबसूरत हकीकत को महसूस करना चाहा तो मैंने अपने रब से ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं पाया। जिस तरह हम अपने इख्तियार में आई हुई चीजों के लिए वक्त मुकर्रर करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिसके इख्तियार में हम हैं वो हमारे लिए करता है। हमें सिर्फ उस पर भरोसा करना होता है। कुछ बातों को समझने के लिए वक्त दरकार होता है। कुछ हकीकत वक्त से पहले आकार हो जाए तो शायद अपनी कीमत खो दे। कुछ जज्बात की हकीकत भी ऐसी होती है, उनकी असलियत एक वक्त के बाद पता चलती है। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, रिश्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। अल्लाह पाक जब मदद करने पर आता है तो लामालूम से कोई सबब पैदा कर देता है और ना होने से होना निकाल देता है। अल्लाह पाक पर यकीन इतना मजबूत कर लो कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो उन तमाम दुआओं पर कुन कहेगा जो हमें नामुमकिन नजर आती हैं। आपके जन्म जब अल्फाज किसी को जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका दे सकती हैं। दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स वो है जिसे मुश्किल में आवाज देना आसान हो। अल्लाह पाक से अपना रिश्ता इतना मजबूत करो कि तुम्हें किसी और के सहारे की जरूरत ना रहे। दरख्त जितना ऊंचा होगा उसका साया उतना ही छोटा होगा, इसलिए ऊंचा बनने की बजाय बड़ा बनने की कोशिश कीजिए। अखलाक के पीछे किरदार का होना लाजमी है। मुंह की मिठास और चेहरे की मुस्कुराहट को अखलाक नहीं बल्कि फन कहते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नजर का इलाज मुमकिन है, नजरिए का नहीं। हीरे जवाहरात हासिल करने से कहीं बेहतर है कि इंसान खुद अपने अंदर उन जैसी सिफात पैदा कर ले। जिंदगी में दो चीजें याद रखें, जब आप अकेले हो तो अपने ख्यालात का ख्याल रखें, और जब आप लोगों के साथ हो तो अपने अल्फाज का ख्याल रखें। कुरान पाक बार बार कहता है ना उम्मीद ना हो, कमजोर ना पड़ो, गमगीन ना हो। बेशक अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है। इंसान को अपने आप से इतनी मोहब्बत तो होनी चाहिए कि वो खुद को जहन्नुम से बचाकर जन्नत तक ले जाए। अल्लाह पाक हमें जहन्नुम की आग से बचा। आमीन सुम्मा आमीन। लोग अच्छा पढ़ने और अच्छा लिखने वाले को काबिल कहते हैं, जबकि काबिल वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। अल्लाह पाक के खजानों में सबसे कीमती चीज राह हिदायत है।
खामोशी इख्तियार कर लेना दब जाने की अलामत नहीं बल्कि तजद का फर्क है। हर बात और हर बंदा जवाब का मुस्तक नहीं होता। जिंदगी हर जानदार को दी जाती है मगर बामकसद जिंदगी सिर्फ इंसान को दी गई और वो मकसद ही उसे बाकी मखलूक से अलग और बेहतर बनाता है। इंसान मायूस और परेशान तब होता है जब वो अपने अल्लाह को राजी करने के बजाय लोगों को राजी करने में लग जाता है। मेहनत का फल और मसले का हल रब देगा, यह मत सोचो कब देगा, जब देगा बेहिसाब देगा। मोहब्बत का असल हकदार तो तुम्हारा रब है, तुम बस अपने रब के आगे झुको, वो किसी और के आगे झुकने नहीं देगा। बेहतरीन सीरत यह है कि तुम लोगों के साथ उस तरीके से पेश आओ जिस तरीके से तुम लोगों को अपने साथ पेश आना पसंद करते हो। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते लेकिन अपनी निगाहें नीचे रखो ताकि पता चले कि तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हो। अगर तुम सीधे रास्ते पर हो और तुम किसी मुश्किलात का सामना नहीं कर रहे हो तो तुम सोचो हो सकता है कि तुम गलत रास्ते पर हो, क्योंकि सीधा रास्ता मुश्किलात से भरपूर होता है। जिंदगी की असल खूबसूरती यह नहीं कि तुम कितने खुश हो बल्कि जिंदगी की असल खूबसूरती तो यह है कि दूसरे तुमसे कितना खुश हैं। तुम्हारा रब जिस चीज को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो और जिस चीज को तुमसे दूर कर दे उस पर राजी रहो। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता लगना शुरू हो जाता है और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तो तीन चीजों को कभी न भूलना। अल्लाह पाक को, उसकी मखलूक को, अपनी औकात को, अच्छे इंसान की तारीफ के लिए इतना ही काफी है कि यह किसी को तकलीफ नहीं देता। वो ख्यालात जो तुम्हें कमजोर कर दे उन्हें सोचना छोड़ दो। उस आदमी की इज्जत करो जो तुम्हारी इज्जत तुम्हारी गैर मौजूदगी में करे। किसी का बुरा चाहने से पहले यह भी सोच लें कि आप भी इसी दुनिया में ही रहते हैं। जिंदगी सिसकी से शुरू होकर हिचकी पर खत्म होने वाला सच तरीन सफर है। जुबान वो हथियार है जिसको इंसान गुस्से में इस्तेमाल करने से मजबूत रिश्ते में राड़े डाल देता है। अपना गम सोच समझ कर बांटें। इस दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द ज्यादा है। किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश ना करो। दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जब तुमको यकीन हो अल्लाह पाक तुम्हारे साथ है तो इस बात की फिक्र छोड़ दो कि कौन कौन तुम्हारे खिलाफ है। घबराओ नहीं, परेशान ना हो, ना उम्मीद ना हो, वो तुम्हारी हर सदा सुन रहा है। तुम्हारे आंसू उसके लिए बहुत कीमती हैं, वो बहुत जल्द तुम्हारी दुआओं पर कुन फरमाएगा। ये देर वक्त तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। जिंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह पाक ने अता की। झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी इंसान की बुनियाद हिला देती है। अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा रिज्क अल्लाह पाक के पास है तो तुम रिज्क तलाश ना करो बल्कि अल्लाह पाक को तलाश करो जिसके पास तुम्हारा रिज्क है। जब लोग साथ छोड़ जाते हैं तो इसमें भी अल्लाह पाक की तरफ से एक पैगाम होता है कि अब बता तेरा मेरे सिवा कौन है। पाक है वो रब जो बर्दाश्त से बढ़कर दुख नहीं देता मगर जब सुख देता है तो इंसान की औकात से बढ़कर देता है। अल्लाह पाक की मोहब्बत दिल में हो तो दिल की हिफाजत करती है। जो लोग आपके काबिल नहीं उन्हें आपसे दूर रखती है। मेरा नसीब मेरे रब ने लिखा है, गलत हो ही नहीं सकता। मेरा अल्लाह पाक देर तो करता है पर कभी मायूस नहीं करता। गुरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज्यादा होता है। जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्दी होश में नहीं आता। अगर तुम किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो तो यह ना समझना कि वो कितना बेवकूफ है बल्कि यह सोचना कि उसको तुम पर एतबार कितना था। बेजुबान से भी हमदर्दी करना न भूलो, यह बगैर लफ्जों की दुआएं देती हैं। हजरत अली ने फरमाया उस चीज का गम ना करें कि आपने गलत इंसान पर मोहब्बत जाया कर दी है, क्योंकि अल्लाह पाक वही मोहब्बत आपको सही इंसान के जरिए वापस लौटा देगा। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता लगना शुरू हो जाता है और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। अल्लाह पाक कभी तो मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता, जुदा तब करता है जब दोनों में से कोई एक मुनाफिक हो। अल्लाह पाक कभी किसी मुखलिस को मुनाफिक से नहीं जोड़ता। तीन चीजें इंसान को अल्लाह पाक से दूर कर देती हैं: अपने अमल को ज्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना और अपने आप को सबसे बेहतर समझना।
जिसका जर्फ देखना हो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, नियत देखनी हो तो उसे खर्च दो। दूसरों को हर वक्त तोलने वाले खुद बहुत हल्के होते हैं। तरबियत का फर्क होता है, वरना जो शख्स सुन सकता है वो सुना भी सकता है। माफियां तो गलतियों की होती हैं, अजियतों का तो मकाफत अमल होता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। जब अल्लाह पाक किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी जुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह पाक की याद के बगैर जिंदगी अधूरी है। इंसान सब कुछ पाके भी अधूरा ही रह जाता है। कबूलियत का एक उसूल है कि सब्र रखो, दुआ करो और मोजिज़ों को पालो। बेशक अल्लाह पाक दुआओं को कबूल करने वाला है, इसीलिए नई उम्मीद के साथ अल्लाह पाक से दुआएं करते रहो। बस आप यकीन रखो, आपके हिस्से की खुशियां आपको बहुत जल्द मिलेंगी। जब अल्लाह पाक ने फरमाया है कि इतना दूंगा अपने बंदे को कि वो अपने ऊपर बीती हुई हर तकलीफ की शिद्दत को भूल जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ करिए कि अल्लाह पाक हम सबको इन बातों पर सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है प्यारे नाज़रीन आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साजिम वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।